This call is now being recorded. Okay, so in the last lecture we have done we have started with the IP addresses, that is IPv4 addresses. Okay, and then we have seen the IP addresses of 32-bit address. Okay, and your IP address consists of more than 4 billion addresses. Okay, your IPv4 consists of, or it is having more than 4 billion of addresses space. Okay, and then it has a network component and it has a host component. It means that your IP address consists of two components. That is, first is host network component and second is host component. It can be presented in terms of binary uh, format, and it can be presented in terms of the decimal. Okay, separated, each decimal number will be separated by the dot. Okay, and then afterward we have seen the comparison of this IPv6 with IPv4, that in IPv6 it is of 128 bit, it is of 128 bits of IPv6 address. So around a lot of addresses spaces are possible using IPv6. Okay, and then your IP address is broken down into two components. Recently I told you, that is the network component and the host component. Your network component defines the network segment of the device. Okay, your network component defines the network segment of the device, and the host component defines the specific device on a particular network segment. किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पर किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पर के उसके अंदर कौन सा होस्ट है. In order to know that particular host, in order to know the accurate destination, this host component is required. Okay, so we saw this one, and then afterward we have seen the class full addressing scheme mechanism, in which all the address spaces, like your more than 4 billion address spaces, were divided into 5 classes, starting with classes A, classes B, classes C, and classes D, and then classes E. Okay, so we have seen already all those classes. Okay, and then for each and every class, let me show you with the help of this diagram. Let me tell. Okay, and let me know if there's anything goes wrong, then please let me know. Okay, I hope everything is going fine. Okay, so as far as your class full, I'll show it on the other page. Someone wants to join. Tahar Sheikh. अच्छा, आज मैं होस्ट हूँ ना, तो आज मेरे सर में दर्द रहेगा. Okay, so as far as your class full addressing mechanism is concerned, class full addressing, in class full addressing, the classes are like class A, class B, class C, class D, and class E. Okay, out of these, for example, if we consider, then this is my IP address, this is my B, this is my C, just for the presentation purpose, this is E. Okay, the chota bada hai, that you can consider. Okay, all the all the IP addresses are divided into 4 octet, as we know that it is of 32 bit. Okay, and 32 bits having 4 octet. Okay, so 1 2 3 4, so this is 1 octet, this is second octet, this is third, and this is fourth. So we are having total 4 octet. Okay, so as far as the class A is concerned, I'll just make the dotted division. Okay, so that will come to know easily. Okay, so this is first octet, this is second octet, this is third octet, and this is fourth. I'm just taking a revision because this is very, very important. Okay, in order to know and in order to understand the later part, the later concept, like subnetting. Okay, so this is 8 bit, this is 8 bit, this is 8 bit, 8 bit. Okay, so total I'm having 32 bits. Okay, so as far as your class A is concerned, 8 bits are of the 8 bits are of the network bits, and remaining are the host bit. Okay, I'll just make with this help. Last time we have seen one example, one diagram in that particular slide, the same diagram, almost same diagram. Okay, but I'm explaining this diagram in quite different way. Okay,
Then class B address, class B addressing mechanism. In this, we are having two, that is 2 octet as a network component, 2 octet as a network component, and the remaining one as a host component. Okay. Then in the class C, we are having 1, 2, and 3 component. We are having 3 octet as a network component, and the remaining one, that is the last octet, as a host component. Okay. uh, this is one is the use for multicasting purpose. Okay, and the last one is for reserve for future use. So reserved for future use. Okay, the range for all the classes is like zeros to 127. Okay, 0 to 127. Then we have from 128 to 191. Okay, for class C we have from 192 to 223, and then for class D we have from 224 to 239. Okay, and the last 240 to 255. Okay, so these are the classes which are concerned with each and every class. What we have seen, that is the classful addressing. This addressing mechanism is called as classful addressing mechanism. Okay, in this, you know that we have 0 to 127. One point I told you that some of the people consider it as a 0 to 126. Okay, some of the people consider this A class as a 0 to 126, and they leave 127. Even this 127 comes under the A class only. Okay, and your 127.0.0.1. Okay, this address is nothing but this one class. This ये आपकी जो range है इसको reserve कर दिया गया था आपके it is called as universal loopback IP address. It is called as universal loopback IP address. Okay, so when you want to ping yourself, and when you want to know the network status of yourself only, then you can ping this IP address. Okay, आप command prompt में type करना इसको और ping करना, so it will show you the current network status of your machine only. Okay, so that comes under the class A only, but some of the people used to count it as a 0 to 126. Okay, somebody wants to join? Yes, so that's it. Okay, so it was a classful addressing mechanism. थोड़ा सा blurry हो रहा है ये, but हो जाएगा. बार बार blurry हो रहे हैं. चलो ठीक है, आगे देखते हैं. ये तो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम. उसके अलावा फिर हम लोगों ने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी. फॉर क्लास ए for class A, we know that the how many bits are comes under the network component. For class A, how many bits comes under the network component? As you know that it has only 8 bit which comes under the network component. Okay, so 8 bit इसके पास में है जो कि network के हैं. Okay, so अगर इसके पास में 8 bit network के है, then उसके बाद में मैंने आप लोग को एक चीज ये भी बताया था कि ऐसा नेटवर्क आइडेंटिफायर 1 bit is reserved. यहाँ पर 1 बिट इसका जो होता है वो इट इज रिजर्व फॉर द नेटवर्क एज अ नेटवर्क आइडेंटिफायर. ओके, विच इज 0. ओके, डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा. सो यहाँ पर एक 0 है. ठीक है, सो आपका 1 बिट चला गया. नाउ यू हैव रिमेनिंग 7 बिट्स. ओके, of these remaining 7 bits, you can easily say that 2 raised to 7. How many networks? Because we have considered the network component. This is the network part. This is the network component. This is the network component. Okay, so we are considering the network part right now. Okay, so and 1 bit is reserved as a network identifier, which is 0. Okay, so we have total 7 bits in class A IP address. So we can easily calculate that 2 raised to 7. Okay, 2 raised to 7, it becomes how much? So you can easily get, I think 128 networks are possible. 128 networks are possible. 128 networks are possible using class A IP address, or 128 networks in the world that can have class A IP addresses. Okay,
तो ये वाला आपका आईपी एड्रेस है, सॉरी क्लास ए का हुआ। देन उसके बाद में वी हैव क्लास बी। इन क्लास बी यू नो दैट, in class B you know that we have two octet, I'm just marking it in a quite dark, you can just consider it okay. So we have two octet which comes under the network component, okay. So 8 and 8 16 total are 16, so I'll write total 16 bit है, okay, but लेकिन यहाँ पे -1 हुआ है as a network identifier in the class B IP addresses. In the class B IP addresses, we have two bits which act as a network identifier, okay, which are 1 and 0, okay. So which are 1 and 0, so 1 and 0, these two bits are there which act as a network identifier. So 16 bit minus 2, it becomes how much? 2 raised to 14. 2 raised to 14 will give you around 16,384 networks that can have a class B IP addresses, okay. ये भी हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था, I'm just revising it again, okay. Then we have class C, ये चक्कर है हमारा class C तक ही जाएगा. Then we have a class C. In class C you know that we have 3 octet, you know, this is first octet, this is second octet, this is third octet. So we have total 3 octets which comes under the network component, okay. So 8 plus 8 plus 8, how much? It becomes 24, okay. So we have 24 bits in our hand, okay. But as the network identifier in class C, this is 110, this is 110, okay. We have these 3 bits which defines the network, which will act as a network identifier. So it becomes now how much? 24 minus 3, it becomes how much? 21. So 2 raised to 21, how much it will be? It will be around 20,97,152, because I'm having the value, okay. So I'm writing it as it is. So this means that we have 2 raised to 21, that is around 20,97,152 networks are possible, and we can say these network in the world that can have the class C IP addresses, okay. So ये हुआ आपका class C के बारे में, okay. So इतना हम लोग ने देखा था लास्ट लेक्चर में. आज गलती से मैं होस्ट हूँ, तो इसके लिए सब काम भी मुझे करना पड़ा है. Okay, so I think this is clear to all regarding classful addressing scheme mechanism, regarding class C classful addressing scheme mechanism, okay. So चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो ये हो गया है, देखता हूँ कुछ और इसमें कुछ और बाकी है आप लोगों को बताना. हाँ, some questions are asked regarding this. कभी कभी वाइवा के अंदर ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं पहले. सही से प्लेस हो रहा है, रिकॉर्डिंग में भी सही आना चाहिए एक्चुअली. ओके, अभी जो नोटिफिकेशंस को भी बंद उसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, बाद में करता हूँ. ओके, सो हम लोग को रेंज भी पता है किसकी क्या रेंज है, कहाँ से कहाँ तक रेंज है. चलो एक बार रिवाइज करते हैं वापस से. मैं यहाँ पे साइड में लिख के रखता हूँ आप लोग के रेफरेंस के लिए, ओके. चलो, फॉर क्लास ए द रेंज इज फ्रॉम आई थिंक 1 to 126 या 127, जो भी बोलो, बट 127 है, ओके. So the A की range है, class A की range 1 to 127, and you know that for each and every decimal number it may goes from 0 to 255. It may goes up to 255 only. It start from 0. Okay. So ये range हो सकती है. अब कौन है? इनायत. Okay. Then we have class B 128 to 191. इसको आप लोग अच्छे से एकदम याद में रखना है. Okay. Then we have class C. We have class C from 192 to 223. Okay. Then we have class D, that is from 224 to 239. And then we have class E, that is 240 to 255. Okay. तो ये आपकी क्लासेस में एज अ रेफरेंस साइड में लिख के रखता हूँ.
ओके अब देखते हैं आगे। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों के आपको मैंने बता दिया। ओके, two or three questions are asked regarding this one. Some IP address is given to you. Maybe Viva में ऐसा हो सकता है, one IP address is given to you and they will tell you that you need to find the network ID of that particular IP address. Okay, चलो मैं आपको मैं लिख के बताता हूँ। You need to find the network ID of the, अच्छा, and you know one trick. Okay, आपको ट्रिक तो खैर पहले से पता रहेगी, बट लेकिन फिर भी, जैसे फॉर एग्जांपल आई कंसीडर दिस आईपी एड्रेस 192.168.37.200। चलो ये मैंने एक रैंडम आईपी एड्रेस लिया। ओके, नाउ यू टेल मी दैट दिस आईपी एड्रेस बिलोंग टू व्हिच क्लास। ओके, this IP address belong to which class? As we can see, it comes under the class C, because 192 start from C class start from 192. Okay, so this is basically class C IP address. Okay, and you know that in class C IP address, you know that we have 1 2 3 component which comes under the network component. Okay, जो कि आपके network component होते हैं। Okay, अब अगर आपके ये नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं, देन हमारे यहाँ पर उसको क्या रहेगा, ये फॉर एग्जांपल आपका ये जो यहाँ से ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट, ये आपका सेकंड ऑक्टेट, एंड दिस इज योर थर्ड ऑक्टेट। हेलो सर। यस यस बोलो। सर मेरे को ना आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, मतलब सिर्फ हाफ स्क्रीन दिख रही है। आई थिंक मोबाइल वालों को आधा ही स्क्रीन दिख रहा है। आधा स्क्रीन मतलब कैसा, समझा नहीं। मतलब मुझे दिख ही नहीं रहा है आपका वो पेज, वो ऑलमोस्ट हाफ ही दिख रहा है, लाइक एम्प्टी पेज दिख रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, आप अगर कभी स्क्रीन को अपने मोबाइल का अगर कभी आप रोटेट कर लो तो भी वही है सर, मैंने दोनों ट्राई करके देख ली, मतलब वो स्विच हो रहा है हाफ टू फुल। अभी मुझे हाफ दिख रहा है थोड़ी देर से। थोड़ा मैडम थोड़ा जूम कर ले, देखो शिफा मैडम ने थोड़ा सा सोल्यूशन बताया है। इट इज नो इट्स इट्स स्टिल शिफा, इट्स स्टिल द सेम, द हाफ स्क्रीन दिख रही है मुझे। जो ऑलमोस्ट सब लोग यही बता रहे हैं, आसिया के सब लोग को दिख रहे हैं। आसिया लीव करके फिर से ज्वाइन कर, क्योंकि बाकी सबको दिख रहा है ना, तो कुछ तो इशू हुआ होगा। फिर से ज्वाइन करके ट्राई कर। ओके आसिया एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो। ओके सर। अब्दुल करीम, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। ओके सो so as we know that this is the class C IP address, and in class C IP address we have 3 octet. We have 3 octet, that is the first octet, we have second octet, and we have third octet. Okay, yes, हाँ, अच्छा ऐसा बोल रहे थे अब्दुल करीम। ओके, आई थॉट कि आपने कुछ और बोला। चलो ठीक है। सो ये मेरा क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो क्लास सी के आईपी एड्रेस के अंदर आई हैव 3 ऑक्टेट व्हिच कम्स अंडर द नेटवर्क कंपोनेंट। ओके, मतलब मेरे 3 जो कंपोनेंट है वो नेटवर्क में। तो सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिगार्डिंग दिस, यू विल बी गिवन एनी आईपी एड्रेस एंड विल बी आस्क्ड टू फाइंड द नेटवर्क आईडी। आई विल राइट द क्वेश्चन। आपको नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है। ओके, आपको ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा। ओके, एंड उसके बाद में आपको पूछेगा नंबर ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हाउ मेनी होस्ट आर पॉसिबल, नंबर ऑफ होस्ट, दैट इज यूजेबल होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूजेबल होस्ट, हाउ मेनी यूजेबल होस्ट आर पॉसिबल। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग को एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की फाइंड आउट करना होती है। वाइवा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ सो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट द नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी एंड नंबर ऑफ होस्ट। ओके, सबसे पहले क्लियर रखो माइंड के अंदर फॉर ईच एंड एवरी नेटवर्क। ओके, फॉर एग्जांपल इफ दिस आईपी एड्रेस इज अलॉटेड टू अ नेटवर्क, ओके, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। सो अगर आपको एक आईपी एड्रेस दिया है तो बेसिकली आपका जो नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट रहेंगे इसमें, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको -2 करना है। -2 क्यों करना है आपको मैं रीजन बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर एक नेटवर्क आईडी एज ए नेटवर्क आइडेंटिफायर होता है और एक ब्रॉडकास्ट आईडी होता है जो कि अपने किसी भी नोड को ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करने के लिए होता है। तो उसमें से दो एड्रेस बाय डिफॉल्ट निकाल देने का। तो जितने टोटल है आपके पास में, तो टोटल -2 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट मिलेगी। चलो हम लोग उसको करते हैं, कैलकुलेट कैसे होता है मैं आपको सब बताता हूँ।
एक सेकंड में स्क्रीन वापस ब्लर हो रही है, ऑटो फोकस पे रखा हूँ मैंने इसको। ओके इसके पहले और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यू मस्ट हैव अ कमांड ऑन दिस थिंग दैट you can easily convert the IP address that is in the decimal format into binary and binary into decimal। ठीक है, आपको दोनों ही चीज करके आना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले पार्ट के अंदर मैं आप लोग को ये थोड़ा सा बताऊंगा कि हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस। हालांकि आप में से काफी लोग को पता रहेगा, बट स्टिल थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। हाउ यू कैन कन्वर्ट योर डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी वन। ओके, तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बिकॉज यू नो दैट हमारा जो हमारा डेसिमल नंबर है इट इज ऑफ 8 बिट। ओके, तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट, चलो उसको देखते हैं। आपको पता है आपके जो अगर बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको उसके लिए आपके पास में जीरोस एंड वन है, तो पॉसिबिलिटी हमारी 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7 इतना ही आना चाहिए हमारे पास में, राइट। अब उसके बाद में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, चलो मैं इसके ऊपर लिखता हूँ 2^0 that becomes 1 2, this is 4, this is 8, this is 16, okay, this is 32, this is 64 and this is 128। okay, got it। अब इसको भूल जाओ, ठीक है। नाउ यू हैव दीज वैल्यूज। ओके, अब ये फॉर एग्जांपल हमारा डेसिमल नंबर है दैट इज 192। इफ यू वांट टू, ये जस्ट आपको मैं एक बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ, आप में से काफी लोग को पता भी रहेगा, बट स्टिल आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस सो दैट यू कैन इजीली कन्वर्ट एट द टाइम जब आपको रिक्वायर्ड पड़े, जब आपको रिक्वायरमेंट आए, सो एट दैट टाइम यू कैन इजीली कन्वर्ट इट एंड यू कैन write it in the examination also। okay, so if you want to convert this 192 into this binary format, then we have written that is from 2^0 from the right hand side to the left hand side। ठीक है, LSB to MSB जैसा आप लोग बोलते हैं। तो एक सेकंड, फोकस मैं इसके लिए एक अलग एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ, सो दैट ऑटो फोकस पे रखा हूँ उसको मैंने। ओके, so we have first value, we have first decimal number that is 192। so you can easily see from this all these value which are listed over here। okay, how we can make 192, we can make 192 by combining this and this bit। okay, that is 128 plus 64। so देखते हैं 128 plus 64 आपका कितना होता है, 8 4 12 1 9 1। so this becomes 192। अगर आपका ये 192 हो रहा है अगर कभी, सो इट मीन दैट आपके ये और ये बिट, मतलब कि 128 वाली बिट को हम करेंगे 1, ओके, और 64 बिट वाली को हम करेंगे 1। ओके, बाकी तो हमको कुछ काम नहीं है, सो विल मेक ऑल द बिट्स एज अ 0। तो ये बन गया आपका सबका सब 0। सो इट बिकम्स द बाइनरी नंबर ऑफ योर 192। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, आप लोगों ने पहले काफी बार किया होगा, बट मैंने एक बार और रिपीट कर दिया जिससे आप लोग को बताने के लिए। ओके, सो इन दिस वे यू कैन इजीली कन्वर्ट योर डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी। ओके, हमारा जो मेन जो काम था वो मैंने यहाँ पर साइड में लिखा हूँ, दैट इज वी हैव टू फाइंड द नेटवर्क आईडी, द ब्रॉडकास्ट आईडी एंड द नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल। ओके, तो चलो पहले ये क्लास का फाइंड आउट कर लेते हम लोग। सबसे पहले इफ यू वांट टू फाइंड द नेटवर्क आईडी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ये वाले का, ठीक है। सो वी हैव आईपी एड्रेस 192.168.37.200। okay, I have this IP address, I need to find the network ID first। okay, so this is my network ID। okay, if I want to find out the network ID, then there is a very simple trick। okay, simple trick क्या आपको बोलती है, simple trick ये बोलती है कि भाई जितने भी आपके नेटवर्क आईडी है, सॉरी मतलब आपके नेटवर्क कंपोनेंट है, तो उसको आप एज इट इज लिखो। ठीक है, अब आपको पता है इसके अंदर हाउ मेनी ऑक्टेट आर द नेटवर्क कंपोनेंट आउट ऑफ दिस 4 ऑक्टेट। we know that 1 2 and 3, there are 3 octet which comes under the network component, and it belongs to class C IP address। okay, as it belongs to class C IP address so we have this। so what we are going to do, we are going to write this thing as it is, that is 192.168.37। ये हम लोग ने जैसा का वैसा ही लिख दिया। ओके, उसके बाद में ये आपका कौन सा कंपोनेंट है, आपका होस्ट कंपोनेंट। ओके, the last octet is your host component। so what you are going to do for making the network ID, you are going to make it 0। you are going to make it 0 because this is the
network ID. In network ID, we always make the host component 0, okay, and the remaining one becomes, and the remaining are your network components. ये आपका network component, ये आपका network component, और ये आपका network component. So these three are your network component. The last one is your host component. So we have made it as a 0. Okay, it becomes your network ID. In this way, you can find out the network ID for each and every IP address. First thing. Second, you want to find out the broadcast ID. Okay, we have to find the broadcast ID. So broadcast ID is the ID which is used in the network in order to send the broadcast message to all the machine, all the nodes, all the terminals, all the computers which are connected in that particular network. So that that broadcast ID is also reserved. इसके लिए देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि we have two IDs, we have to make it -2. Okay, मतलब ये नंबर ऑफ होस्ट कितने रहेंगे टोटल, तो टोटल में से -2 करेंगे. इसके लिए मैं यहाँ पर और एक वर्ड मेंशन किया हूँ, दैट इज यूजेबल. हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस, हाउ मेनी होस्ट को आईपी एड्रेस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, यूजेबल. ओके, ये जो हमारे हैं वो यूजेबल नहीं है. ठीक है, दैट इज नेटवर्क आईडी एंड दैट इज ब्रॉडकास्ट आईडी. ओके, द सेकंड ट्रिक, you need to find out the broadcast ID, okay, for the above IP address, that is 192.168.37.200. okay, how you'll make this broadcast ID? Broadcast ID आपका क्या करना पड़ेगा, जहां पर आपने 0 किया है, जो होस्ट कंपोनेंट को आपने 0 किया है, you have to make this particular host component as the all one. okay, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, all one करना पड़ेगा. कैसे करते हैं, पहले we have to write this as it is 192.168.37. ओके, यहाँ तक हो गया लिख के. ओके, सॉरी, हाँ, इसको हम लोगों ने 1 कर दिए. अभी जो होस्ट कंपोनेंट है आपका, इसको क्या करना है, आपको ऑल 1 करना है, बिकॉज इट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, और ब्रॉडकास्ट में जो वैल्यू होती है वो हमेशा ऑल वंस होती है. सो यहाँ पर आपका इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होस्ट कंपोनेंट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एज अ होस्ट कंपोनेंट, वी विल मेक इट ऑल वंस. ओके, अच्छा, ऑल वंस करना मतलब क्या हुआ, इफ यू कन्वर्ट दिस, if you convert this into the binary, then वहां पर इसके कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, that is 200. अब तो 200 अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 192 प्लस आपको और कितना चाहिए, बोलो, कोई बोलो, what will be the binary of this particular 200? आपको खाली 8 चाहिए ना, हाँ, तो you will make 1 1 0 0 देन 1, बिकॉज ये आपका 8 है. तो ये आपको क्या करता है, ये बिट और ये बिट, मतलब कि ये वाला लेंगे आप, ये वाला, तो आपका बन गया 192 प्लस आपका हो जाएगा 8, दैट इज इट बिकम्स 200. तो आई मेड इट 0 ओनली, इसको मैंने 0 रखा, इसको मैंने 1 कर दिया. ठीक है, सो आई मेड इट 1. ओके, देन 0 0 0 0 0 0. okay, so it is the binary format of this particular 200. But in broadcast address, what I have to do, I have to make it all ones. So 1 1 1 1 1 1 1 1, इसको मैंने पूरा कर दिया 1, because it is the broadcast ID. okay, तो ये जो होस्ट पार्ट है, होस्ट पार्ट के अंदर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऑल वंस कर रहा हूँ. जब मैंने इसको ऑल 1 किया, तो इसका अगर आप कभी निकालेंगे, ऑल वंस का अगर कभी निकालेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, इसका डेसिमल क्या आएगा, 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, it becomes how much, 255. It becomes how much, 255. यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, it is 255. ओके, सो ये बन जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी, ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी. तो ये बन गया आपका नेटवर्क आईडी. इसमें आपने क्या किया, व्हाट यू हैव मेड, you have kept the network component, you have to make the network octet as it is, but यहाँ पर जो आपका host part था, you have made it 0 in the network ID. okay, and then we have second one, that is the broadcast ID. In broadcast ID, what we have made the host component as all 1, and all 1 becomes 255 in the decimal format. okay, तो ये जो host part था आपका, ये बन गया 255. Question number 3 is like how many hosts are possible. अब कितने host possible है, so number of host. okay, अच्छा, number of host कितने possible है, ये अगर आपको concentrate करना है, तो you need to focus on the last octet, because आपका जो क्या बोलेंगे इसको, जो host component है, ये आपका last वाला octet ही है. okay, I'm sure that you are getting the things. okay,
सो पहले ये कंप्लीट हो जाने दो, इसके बाद हम लोग एक और क्लास वाला मतलब एक और आईपी एड्रेस लेंगे विच बिलोंग्स टू क्लास बी, सो दैट थोड़ा सा और क्लियर होगा। ओके, सो नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल, कितने होस्ट पॉसिबल है, ठीक है। Remember that we are talking about the number of hosts. It means that we have to concentrate, we have to focus on the host component. My host component is this one, ठीक है, मैं इसको बार बार मार्किंग कर रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पर नंबर ऑफ होस्ट है, जो मेरा होस्ट कंपोनेंट है उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये जो आपका ऑक्टेट है ये कितने बिट का है, ये कितने बिट का है, टोटली 8 बिट्स का है, ठीक है, 8 बिट्स का है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली 2 raised to 8, 2 raised to 8 माइनस 2 raised to 8 माइनस मैं लिखता हूँ 2। अब आपको समझ में आएगा 2 क्यों, बिकॉज एक तो हमारा नेटवर्क आईडी के लिए चला गया, एक हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए चला गया। ओके, जब दो के लिए दो आईपी एड्रेस चले गए, इसके लिए मैं हमेशा जब भी मैं फाइंड आउट करूंगा नंबर ऑफ होस्ट, इसके लिए उसमें -2 करूंगा, ठीक है। तो -2 इसके लिए बिकॉज एक आईपी एड्रेस हमेशा नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेगा, नेटवर्क की आईडी मतलब एक्ट करेगा, and the second ID address is the broadcast address. Okay, so I have to reserve these 2 addresses for each and every network, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए मैं हमेशा -2 करूंगा। ओके, 2 raised to 8 -2, अब 2 raised to 8 कितना होता है भाई साहब आपका, 2 raised to 8 बोलो, 254। 2 raised to 8 कितना, 256. Okay, so 256 minus 2, so it becomes 254. So it means how many IP addresses are possible in this particular IP address का जो नेटवर्क, अगर फॉर एग्जांपल आप ये वाला अगर आप ये वाला IP एड्रेस किसी नेटवर्क को देते हो, तो उस नेटवर्क के अंदर इतने सारे होस्ट पॉसिबल रहेंगे, उस पर्टिकुलर नेटवर्क में इतने सारे होस्ट पॉसिबल रहेंगे। ओके, सो ये आपके 254 मतलब कि आपको होस्ट मिल सकते हैं ना, आप 254 कंप्यूटर्स लगा के उनको आईपी एड्रेस लॉट कर सकते हैं। ये तो आपके क्लास सी का है। and you know that in class C IP address we are getting less number of IP addresses. क्यों, क्योंकि क्लास सी के अंदर नेटवर्क कंपोनेंट ज्यादा है और होस्ट कंपोनेंट कम है। ओके, नो एवरी आईपी एड्रेस या एवरी नेटवर्क हैज द डिफरेंट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो यहाँ पर हम लोग का जो नेटवर्क कंपोनेंट है क्लास सी के अंदर वी हैव 8 + 8 + 8, सो हमारे टोटल जो नेटवर्क कंपोनेंट हो जाते हैं, सो दैट बिकम्स 24। और हमारा जो होस्ट है यहाँ पे कम है, हमारा होस्ट बिट कितने कम है, 8 बिट है। तो अगर हमारे होस्ट बिट अगर 8 है तो हमारे जो नंबर ऑफ होस्ट है वो भी कम आएंगे, ठीक है। चलो ये समझना अगर कभी है तो एक छोटा सा एग्जांपल, आई नो दिस इज 10:46 बट हमारा 4 मिनट में खत्म हो जाएगा, विल ट्राई टू फिनिश इट। ओके, we will consider any other IP address, let us say 150.10.20.30. okay, so चलो मैं ये वाला IP address लेता हूँ, I hope it is visible to all of you. 150.10 focus. Okay, so this is my IP address. Okay, नाउ यू टेल मी, ये जो आईपी एड्रेस है आपका ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, क्लास ए को बिलोंग करता है। चेक करते हैं वापस से, क्लास ए को बिलोंग करता है या नहीं। सो इट बिलोंग्स टू क्लास बी, सॉरी इट बिलोंग्स टू क्लास बी। देखो आपको तो पता है ये आपका 0 से लेकर 127 आपका क्लास ए है। ओके, एंड आपका जो 150 है, अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस को चेक करना है तो उसका लेफ्ट मोस्ट जो आपका डेसिमल नंबर है इसको आप चेक कर लिया करो, ठीक है। सो द लेफ्ट मोस्ट बिट इज 150 और 150 आपकी कौन सी रेंज में आता है, योर 150 कम्स अंडर द सेकंड क्लास बी, दैट इज क्लास बी के रेंज में आता है। ओके, इट इज बिटवीन 128 to 191। ओके, सो इट बिलोंग्स टू, देखो ऐसा हम लोग को ना हमको आईपी एड्रेस देखते से ही उसका क्लास पहचानने आना चाहिए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तो आप इजीली फटाफट निकाल के सामने रख सकते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सबनेटिंग। जब हम लोग सबनेटिंग करेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं. So for this particular IP address, we need to find the, first of all, you need to find the network ID. Okay. So first of all, I need to find the network ID of this IP address. So we know that this is the class B IP address. Okay. And as you know that this is the class B IP address in which the 2 octet belongs to the network component and 2 octet belong to the host component. Okay. We know this very well that we have 2 octet belongs to the network component and we have 2 octet belong to the host component. Okay. So if the 2 octet belongs to the network component, तो यहाँ पर आपका ये 150 है. तो चलो इसको सबसे पहले इसका नेटवर्क आईडी लिखते हैं. तो नेटवर्क आईडी आपको मैंने बताया कि जो नेटवर्क कंपोनेंट है उसको एज इट इज लिखना है. जो नेटवर्क कंपोनेंट है उनको एज इट इज लिखना है. 150.10 एज इट इज लिखा. उसके बाद में आपको जो होस्ट कंपोनेंट है, जो होस्ट कंपोनेंट कौन से रहेंगे, ये होस्ट कंपोनेंट है. ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं मार्क कर लेता हूँ so that you will understand that 20.30 this is the host component and this host component will become 0. This host component will become 0, so it becomes your network ID. Okay, so after that we have second one, that is broadcast ID. That is broadcast ID. broadcast ID क्या होना चाहिए इसकी, 150.10 डॉट जो भी आपने 0 किया है इसको विल मेक इट 255. ओके, दैट इज ऑल वंस. ओके, ये हो गया आपका 255, तो इट बिकम्स योर ब्रॉडकास्ट आईडी. ये दोनों तो बहुत सिंपल है, आप लोग एक झटके में लिख सकते हैं. ओके, नो थर्ड वन. अब थर्ड वन में नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट. ओके, आई एम राइटिंग यूजेबल होस्ट. ओके, ऑलरेडी 2 IP addresses are used for that purpose. So first of all let me know out of this 8. तो आपके नेटवर्क होस्ट कितने, आपके नेटवर्क कंपोनेंट कितने बिट है, 16 है. आपके होस्ट कितने हैं, 16 है. यहाँ पर तो इक्वल मामला है. ठीक है, तो चलो आपके होस्ट कितने वो निकालते हैं हम लोग. तो अब आपके होस्ट यहाँ पर 16 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2⁻16. ओके, हाँ, आई एम राइटिंग 2⁻16 माइनस हाउ मच, 2, 1 and 2. तो ये 2 को मैंने माइनस किया. इट बिकम्स हाउ मच, 2⁻16 आपके जितने भी होते हो, तो 2⁻16 माइनस 2 इट बिकम्स अराउंड 65. जहां तक मुझे याद है 65,534. ठीक है, इतने कुछ होते हैं. हाँ, प्लस भी ना. हाँ, चलो जो भी हो, दैट कैलकुलेशन यू कैन डू इट फ्रॉम योर एंड. 2⁻16 माइनस 2 करेंगे तो ये बन जाएंगे आपके अराउंड 65,534 IP एड्रेसेस आपके हो जाएंगे, जो कि आपका अपने क्लास B के अंदर. नाउ यू कैन जस्ट कंपेयर. अब थोड़ा सा आप इसको कंपैरिजन करो कि आपका क्लास A के अंदर हाउ मेनी IP एड्रेसेस वर पॉसिबल. 254 ओनली IP एड्रेसेस वर पॉसिबल. एज यू कैन सी ओवर हियर, मैं आपको बता देता हूँ. 254 IP addresses were possible. We have calculated for the class C IP. कौन है भाई ये? Okay, so only 254 were possible. Okay, but if you consider the class B IP address, then you can imagine. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि इतने IP addresses are possible. तो कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है. ठीक है, यानी आपके खाली ये नेटवर्क के अंदर आपके इतने सारे 65,500 अराउंड 34 IP एड्रेस आप अलॉट कर सकते हैं. उतने आप क्या बना सकते हैं, अपने वो क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ कंप्यूटर आप रख सकते हैं. लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, मैं थोड़ा आप लोगों का टाइम ले रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट टू कनेक्ट योर दिस लेक्चर, दैट इज IP एड्रेसिंग विद द सबनेटिंग. मैं सबनेटिंग को खाली कनेक्ट करूंगा और उसको फिर छोड़ दूंगा. ओके, बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. एंड दोज हु आर नॉट प्रेजेंट टुडे, उनको भी बोलो कल रहे प्रेजेंट. जो लोग आज है वो कल पक्का रहना, क्योंकि ये कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो जस्ट इमेजिन करो कि आपके यहाँ पे 65,534 होस्ट पॉसिबल. हम लोग ने यहाँ पर होस्ट निकाले हैं. ठीक है, और वैसे आपने नेटवर्क तो आपने देख ही चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके होस्ट इतने सारे पॉसिबल है, उतने सारे नेटवर्क ऑफिस के अंदर इतने सारे आपके होस्ट है. अगर आप कोई कंसिडर करते हैं कोई क्लास A का, हम लोग ने क्लास C का देखे, फिर क्लास B का देखे, फिर क्लास A का कोई देख लो, दैट इज 1110.10.41.10. ओके, सो ये मैंने लिया हूँ एक IP एड्रेस. ओके, ये आपका क्लास A को बिलोंग करता है. ओके, इफ यू ड्रॉ द डायग्राम देन इजीली यू कैन से दैट आपका ये नेटवर्क कंपोनेंट 1 है. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्लास A
the first octet belongs to the network component and the remaining belongs to the host component. तो यहाँ पर सही है ना, हाँ यहाँ पर मतलब आपके और ज्यादा होस्ट है, यहाँ पर आपके जो 3 ऑक्टेट है इट बिलोंग्स टू द होस्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ पर आपके ये होस्ट कंपोनेंट है और ये वाला आपका खाली नेटवर्क कंपोनेंट है। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग अंदाजा लगाते हैं, फर्स्ट द नेटवर्क आईडी 1110, ओके 1110 डॉट, बाकी का ये पूरा का पूरा आपका होस्ट है, खाली जो फर्स्ट वाला है ये आपका नेटवर्क कंपोनेंट, विल राइट इट एज इट इज 110.0.0.0. It becomes your network ID. Second, your broadcast ID. Your broadcast ID is 110.255.255.255. ये बन गया आपका broadcast ID. नंबर 3 पे आते हैं आपके number of usable host. ओके, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, आपके पास में होस्ट कितने हैं अभी 24 है, ये कितने बन गए आपके 8 + 8 + 8, हाउ मच 8 + 8 + 8 becomes 24, so it becomes 22^24 - 1 and 2, okay, as you know according to the rule -2, okay, तो आप अंदाजा लगा लो 2^4, मेरे पास तो कैलकुलेशन नहीं है इसका, you can just calculate it। अच्छा, अरे बाप रे, चलो इसने निकाल भी लिया भाई शाहरुख ने। सो जो भी है आप लोग की वैल्यू यहाँ पर आएंगे, तो इतने सारे होस्ट आप लगा सकते हो, इतने सारे होस्ट आप कनेक्ट कर सकते हो। नो यू नो द ब्यूटी ऑफ दिस क्लासेस जो हम लोगों ने देखा है, तो उसकी ब्यूटी ये है कि वी कैन हैव दिस मच ऑफ आईपी एड्रेसेस इन अ सिंगल नेटवर्क, इतने सारे हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको मैं बताना चाहूंगा, 54 हो गया, और ज्यादा डिले नहीं कर सकते। चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ तक सीमित रखते हैं। ओके, बस इतना यहाँ तक आज का आप लोग अगर समझा होगा, आईपी एड्रेसिंग का थोड़ा हम लोग ने देखे, और उसके बाद में फॉर ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस नहीं ना, अभी 1054 हो गया। अगर वो मैं टॉपिक कनेक्ट करना चाहूंगा सबनेटिंग का, तो फिर वो मतलब आगे का लेक्चर आ जाएगा। इसके लिए ठीक है, इसको हम लोग कल 5 मिनट में वापस से रिवाइज करेंगे, बराबर टाइम पे आना, इसको 5 मिनट में रिवाइज करेंगे, and after that we'll continue with the subnetting. Okay, so thank you everyone, and please share your comments regarding the unique presentation what we have done today. मैंने आज थोड़ा पेन और पेपर का यूज किया हूँ, because this is the concept which cannot be explained on using the slides. Okay, so slide पर आपको खाली बता देता था, तो कुछ समझ में आने वाली चीज नहीं है। इसके लिए मैं I have made use of this paper and pen. Okay, so हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे फ्यूचर में भी ऐसे जो टॉपिक्स रहेंगे आपके, तो उसको हम लोग वी कैन मेक इट यूजिंग दिस पेपर एंड पेन। ओके, हाँ ब्लर प्रॉब्लम है, बाकी तो चलो ठीक है। आई विल फर्स्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।